ایک شریف نوجوان جسے قدم قدم پر سنگسار کیا گیا، ظالم معاشرے کی ناانصافیوں، کرپٹ پولیس اور دولت مند بدماشوں نے اسے بھی ایک غنڈہ بننے پر مجبور کر دیا۔ اور جب ایک شریف انسان جرائم پیشہ بن جائے تو وہ سب غنڈوں سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایک بدقسمت نوجوان جسے جرم کی دلدل نے ایک آتش فشاں بنا دیا، بدلے کی آگ میں جلتے ایک شریف نوجوان کی کہانی۔ شارق بولا، چلو سمینہ، تارے کو ذرا انڈر گراؤنڈ لے چلیں، اسے وہ سونا دکھا دیں جو ہم نے حاجی کے داماد سے چینا تھا۔ سمینہ نے باہر جا کر برآمدے کی بتی بجھا دی، دروازہ بند کر کے لاک کر دیا اور وہ لوگ تارے کو لے کر تہہ خانے میں آ گئے۔ شارق نے تہہ خانے میں رکھی ہوئی لکڑی کی پیٹیاں الٹ دیں، سونے کے بسکٹ فرش پر بکھر گئے۔ تارے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ شارق نے تارے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہے وہ دولت جس کے لیے حاجی تم جیسے لوگوں کو مروا رہا ہے، اور تم نے بھی اس کے لالچ میں اپنے 2 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سے پہلے نہ جانے کتنے آدمیوں کو مار چکے ہو۔ یہ 3 کروڑ کا سونا تمہارے سامنے ہے، اب تم بھی اس سونے کے ساتھ اس تہہ خانے میں بند رہو گے۔ بھوک لگے تو پیٹ بھرنے کے لیے اسے کھا لینا۔ تارا اس کے پیروں پر گر گیا۔ مجھے معاف کر دو شارق باؤ، تم جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں، میری زندگی بخش دو۔ شارق بولا، میں اگر تمہیں چھوڑ بھی دوں تو حاجی تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اسے تمہارے 2 ساتھیوں اور قدیر کے اڈے سے اپنے دوسرے آدمیوں کی لاشیں تو مل جائیں گی، لیکن تمہاری لاش نہ پا کر وہ سمجھ جائے گا کہ تم نے غداری کی ہے، اور وہ تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تارا رو دیا، بولا، میں تمہارا ہر حکم مانوں گا شارق باؤ۔ شارق نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں ایک شرط پر کچھ دنوں کے لیے زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ تارا بولا، میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ شارق بولا، مجھے حاجی کے تمام ٹھکانوں کا پتہ چاہیے، اور ان جگہوں کا پتہ بھی جہاں وہ اپنا مال رکھتا ہے۔ تارا بولا، میں بتا دوں گا شارق باؤ، سب کچھ بتا دوں گا، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ مجھے زندہ چھوڑ دو گے۔ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، لاہور چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں حاجی اور اس کے آدمی مجھے تلاش نہ کر سکیں۔ شارق بولا، میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں وہ تمام پتے بتانے ہوں گے جو میں پوچھ رہا ہوں۔ تارے نے روتے ہوئے کہا، بتا دوں گا، میں حاجی کے سارے ٹھکانے بتا دوں گا۔ شارق بولا، تو بس شروع ہو جاؤ۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ حاجی اپنا اسمگل شدہ مال کہاں رکھتا ہے۔ تارا بولا، مال رکھنے کے 3 ٹھکانے ہیں، ایک مصری شاہ میں، دوسرا باغبان پورے میں، اور تیسرا ملتان روڈ پر بھلا سٹاپ کے قریب ایک گلی میں۔ پھر اس نے ان ٹھکانوں کی لوکیشن بھی بتا دی۔ شارق بولا، ٹھیک ہے، تم 1-2 دن اسی تہہ خانے میں رہو گے، اس کے بعد تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ شارق نے سمینہ اور شاہ پری کو اشارہ کیا اور وہ تینوں تہہ خانے سے باہر آ گئے۔ شارق نے تہہ خانے کا دروازہ بند کر کے تالا ڈال دیا تھا۔ شارق نے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، میرا خیال ہے چائے تو نہیں ملے گی؟ سمینہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بغیر دودھ کی چائے مل سکتی ہے۔ شارق بولا، اور تم نے دودھ کے جو ڈبے لا کر رکھے تھے وہ کہاں ہیں؟ سمینہ بولی، اوہ وہ تو میں بھول گئی تھی، ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ شاہ پری موقع پا کر شارق کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بولی، تمہاری ماں اور بہن تو بہت اچھی ہیں، انہیں ہر وقت تمہاری پریشانی رہتی ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی خاطر تم یہ سارے دھندے چھوڑ دو؟ شارق بولا، یہ دھندے چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ شاہ پری بولی، کسی دوسرے ملک۔ ہمارے خاندان کے کچھ لوگ دبئی میں ہیں، جرمنی اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی ہمارے بہت سے لوگ آباد ہیں۔ دراصل جب سردار داؤد نے ظاہر شاہ کو معزول کر کے افغانستان کی حکومت پر قبضہ کیا تھا تو بہت سے لوگوں نے ملک چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ لوگ عقل مند تھے، انہوں نے مستقبل کا اندازہ لگا لیا تھا۔ ہمارے خاندان اور قبیلے کے بہت سے لوگ بھی اپنے ملک سے چلے گئے تھے، ہمارے حالات اچھے نہیں تھے، ہم لوگ نہیں جا سکے۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی، پھر بولی، اگر ہم لوگ یہاں سے دبئی چلے جائیں تو وہاں پر موجود ہمارے آدمی ہمیں پاسپورٹ بنوا کر دے سکتے ہیں، اس کے بعد ہم یورپ کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں گے، زندگی سکون سے تو گزرے گی۔ شارق مسکرایا، بولا، شاید تم ڈر گئی ہو یہاں کے حالات سے، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے ملک سے باہر جانے کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ شاہ پری بولی، یہ بات نہیں ہے، یہ تو 2 گروہوں کی انفرادی لڑائی ہے، تم ان حالات کا اندازہ نہیں لگا سکتے جب ہمارے ملک پر روسی فوجوں کا قبضہ تھا، گلی گلی میں لڑائی ہو رہی تھی، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی بستی محفوظ نہیں تھی، قدم قدم پر بم پھٹ رہے تھے۔ میں تو ان حالات میں بھی نہیں گھبرائی تھی۔ روسیوں کے جانے کے بعد ہمارا ملک ابتری کا شکار رہا ہے، اس کا اندازہ تم بھی لگا چکے ہو۔ میں اس قسم کے حالات سے ڈرنے والی نہیں، اور پھر اب تمہیں چھوڑ کر تو میں کہیں اور جانے کا تصور نہیں کر سکتی۔ میں تو ماں جی اور رضیہ کی وجہ سے کہہ رہی تھی، وہ بیچاری ہر وقت پریشان رہتی ہیں۔ شارق بولا، بس چند روز کی بات ہے، حاجی سے نمٹ لیں تو اس شہر میں بھی سکون ہو جائے گا۔ ویسے میں وعدہ کرتا ہوں کہ حاجی کے گروہ کے خاتمے کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ سمینہ نے کچن سے نکلتے ہوئے کہا، کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے؟ اس نے شارق کا صرف آخری جملہ سنا تھا۔
शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्क से बाहर तफरीह का प्रोग्राम बन रहा है। समीना ने चाय के कप उनके सामने रखते हुए कहा, शाहपरी ने मुझसे बात की थी। वैसे मेरा ख्याल है कि ये ठीक कहती है। आखिर हम कब तक इस तरह खौफ के साए में जिंदगी गुजारते रहेंगे? हम आज़ादी से कहीं आ जा नहीं सकते। आना जाना तो क्या, घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। हमारी जिंदगी का हर लम्हा खौफ में बीत रहा है। हर वक्त यही धड़का लगा रहता है कि हाजी के किसी आदमी की गोली का निशाना न बन जाए या पुलिस हमें गोलियों से छलनी कर दे। ये जरूरी नहीं कि हम हर मर्तबा धोखा देकर बचते ही रहें। हम तो खैर भुगत ही रहे हैं। माजी और रजिया का क्या कसूर है? उनकी आज़ादी भी सल्ब होकर रह गई है और इसने किसी का क्या बिगाड़ा है? उसने शाहपरी की तरफ इशारा किया। ये अपने मुल्क में आज़ाद थी। वहाँ के हालात चाहे कैसे भी रहे हों, लेकिन इसे कोई खौफ नहीं था। आज़ादी से घूमती फिरती तो थी, लेकिन हमारे साथ देखकर न सिर्फ ये अपने मुल्क से जलावतन हो गई, बल्कि यहाँ आकर ये भी मातूब बन गई है। ये भी यहाँ आज़ादी से नहीं घूम सकती। शाहपरी ने तुमसे जो कुछ भी कहा है, मैं उसकी तायद करती हूँ। हमें अब ये सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। हम फर्जी नामों से किसी भी मुल्क में जा सकते हैं, वहाँ आज़ादी तो होगी। पकड़े जाने या मारे जाने का खौफ तो नहीं होगा। शारिक ने उसके खामोश होने पर कहा, तो गोया ये प्रोग्राम तुम दोनों का है? समीना बोली, हाँ। मुझसे माजी और रजिया की उदासी और परेशानी नहीं देखी जाती। जब से सुहेल मारा गया है, माजी कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगी हैं। शारिक बोला, मैं समझता हूँ। मैंने शाहपरी से भी कहा था कि हाजी के मामले से निमट लें तो यहाँ से चले जाएंगे। हाजी का हिसाब के बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं बुज़दिल नहीं कहलाना चाहता। समीना ने उसे घूरा, बोली, हाजी को मारकर तुम्हें बहादुरी का तमगा मिल जाएगा। शारिक बोला, यही समझ लो। मैंने इसे अपनी अना का मसला बना लिया है। समीना बोली, तो ठीक है, अब सबसे पहले हाजी का ही खातिमा होना चाहिए। इसके अलावा एक और बात, नौलखे को यहाँ ले आएंगे और तुम माजी वाली कोठी कम से कम जाओगे। हम तो बुर्का पहन कर निकलती हैं, लेकिन अगर तुम कभी किसी की नजरों में आ गए तो उन पर एक नई मुसीबत टूट पड़ेगी। शारिक मुस्कुराया, बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। समीना कुछ कहना ही चाहती थी कि फायरिंग की आवाज सुनकर खामोश हो गई। वो लोग कमरे से निकलकर बरामदे में आ गए। फायरिंग की आवाजें अगरचे दूर से आ रही थीं, लेकिन लगता था जैसे दो पार्टियां आपस में टकरा गई हों। समीना शारिक की तरफ देखते हुए बोली, तुमने जफरी वगैरह को यहाँ का पता बताया था ना? मुझे लगता है कि हमारे ही आदमी पुलिस से टकरा गए हैं। शारिक बोला, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अगर ये हमारे ही आदमी हैं और पुलिस या किसी और पार्टी से तसादुम हो गया है तो उन्हें इस तरफ नहीं आना चाहिए। इस तरफ आकर वो बहुत बड़ी गलती करेंगे। समीना बोली, वैसे हमें किसी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहना चाहिए। शारिक बोला, ठीक कहा तुमने। शाहपरी, अंदर से राइफलें ले आओ। हम लोग यहीं बरामदे में बैठेंगे और अंदर की तमाम बत्तियां भी बुझा दो। शाहपरी ने अपना चाय का कप समीना को थमा दिया और अंदर से पुलिस से छीनी हुई दोनों क्लैशनकोफ राइफलें उठा लाई। उसने कमरों की बत्तियां भी बुझा दी थीं। शारिक के पास अपना पिस्तौल मौजूद था। वो तीनों तारीकी में कुर्सियों पर बरामदे में बैठ गए और चाय की चुस्कियां लेने लगे। फायरिंग की आवाजें बदस्तूर आ रही थीं। फिर वो आवाजें बतदरीज दूर होती गईं और उनके तसलसल में भी फर्क आ गया और बिलाखिर वो आवाजें बंद हो गईं। शारिक और समीना वगैरह बरामदे में बैठे रहे। फायरिंग के बंद होने का मतलब ये नहीं था कि वो लोग किसी और तरफ निकल गए होंगे। हो सकता है वो पुलिस को धोखा देकर इस तरफ आने की कोशिश करें, और इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि उनके ताक़ुब में पुलिस भी यहाँ पहुंच जाए। नौजवान ASI और उसके साथी कांस्टेबलों से पुलिस के आला अफसरान को ये इत्तला मिल चुकी थी कि शारिक और समीना इस इलाके में मौजूद हैं। दूसरा वाकया उस फायरिंग का हुआ था। हो सकता है अब तक पुलिस की भारी नफरी ने उस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। इस इम्कान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि वो लोग घरों की भी तलाशी लेना शुरू कर देंगे। जब मामला समीना और शारिक जैसे मुजरिमों का हो तो पुलिस ये कदम भी उठा सकती थी। वक्त गुजरता रहा। मुख्तलिफ अतराफ से पुलिस सायरन की आवाजें सुनाई देती रहीं, जिससे ये अंदाजा होता था कि पुलिस इस इलाके में मौजूद थी। शारिक ने समीना की तरफ देखते हुए कहा, तुमने बताया था कि ये कोठी तुमने किसी सब्जी वाले की मार्फत पर हासिल की है। समीना बोली, हाँ, क्यों, क्या बात है? शारिक बोला, हो सकता है पुलिस मालूमात हासिल करने के लिए स्टेट एजेंसियों और इस किस्म के लोगों से भी राब्ते करे जो मकानों को किराए पर लेने देने का बिजनेस करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस उस सब्जी वाले के तवस्सुत से यहाँ पहुँच जाए। समीना ने नफी में सर हिलाया, बोली, नहीं, पुलिस बराह रास्त किसी मकान पर जाने से पहले मालिक से मिलकर ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि उसने मकान किसको किराए पर दिया है। इस कोठी का मालिक लिबर्टी ही के एक फ्लैट में रहता है। उससे किराए का एग्रीमेंट साबिरा सुल्ताना के नाम पर हुआ है और एग्रीमेंट के साथ साबिरा सुल्ताना के शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी मौजूद है। उस शनाख्ती कार्ड को देखने के बाद पुलिस मजीद मालूमात के लिए यहाँ आने की जहमत नहीं करेगी। शारिक ने पूछा, और ये साबिरा सुल्ताना कौन है? समीना बोली, उस रोज मैं लिबर्टी मार्केट गई थी। मैं कोई चीज लेने के लिए एक स्टोर में गई थी। वहाँ 3-4 औरतें और भी खड़ी थीं।
एक बड़ी भी अपने पर्स में से पैसे निकाल रही थी कि शनाख्ती कार्ड नीचे गिर गया। उन्होंने शायद तवज्जो नहीं दी थी। उन औरतों के जाने के बाद मैंने वो शनाख्ती कार्ड उठाकर छुपा लिया और दुकानदार से उस औरत के बारे में दरियाफ्त किया। मालूम हुआ कि वो एक रिटायर्ड एसपी की बीवी है। शनाख्ती कार्ड पर वसनपुरा का पता लिखा हुआ था, लेकिन उसकी रिहाइश गुलबर्ग में है। शारिक ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। बोला, अगर पुलिस ने साबिरा सुल्ताना से राब्ता करने की कोशिश की तो? समीना बोली, पुलिस साबिरा सुल्ताना के बारे में मालूम करने के लिए वसनपुरा वाले एड्रेस पर पहुंचेगी और वहां से उन्हें मालूम हो जाएगा कि वो एक रिटायर्ड एसपी की बीवी है और वहीं मामला ठप हो जाएगा। शारिक बोला, लेकिन बहरहाल हमें इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहना चाहिए कि हम यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। हमें तारीख पहलू को भी मद्देनजर रखना होगा। समीना बोली, हाँ, लेकिन इसका इम्कान बहुत कम है कि पुलिस यहाँ पहुंच जाएगी। अलबत्ता एहतियात अलग बात है, हम गाफिल नहीं रहेंगे। शारिक बोला, इसका मतलब है कि तहखाने में रखा हुआ सोना हमें यहाँ से हटाना होगा। अगर किसी वक्त पुलिस को पता चल गया तो हमें ये कोठी छोड़नी पड़ेगी और सोना भी यहीं रह जाएगा। समीना बोली, हाँ, सोना हमें यहाँ से मुंतकिल करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में अम्मा वाली कोठी ज्यादा महफूज है। शारिक बोला, कल का दिन देखते हैं, उसके बाद सोना वहां मुंतकिल कर दिया जाएगा। समीना जवाब देने की बजाय शाहपरी की तरफ देखने लगी, जो कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघने लगी थी। क्लाशनकोफ उसकी गोद में रखी हुई थी। समीना ने उसके कंधे पर हाथ रखकर आहिस्तगी से उसे हिलाया। शाहपरी एकदम सीधी होकर बैठ गई। बोली, तुम्हें नींद आ रही है तो अंदर जाकर सो जाओ, हम यहाँ बैठे हैं। शाहपरी बोली, हाँ, बेहतर है कि मैं यहाँ बैठे बैठे ऊँघने की बजाय अंदर जाकर सो ही जाऊं। वो उठकर अंदर चली गई। समीना और शारिक बैठे बातें करते रहे। 2:30 बज गए। दफतन कॉल बेल की आवाज सुनकर वो दोनों उछल पड़े। कॉल बेल राहदारी के अंदर लगी हुई थी और बाहर उसकी आवाज ज्यादा तेज सुनाई नहीं दी थी। शारिक उठते हुए बोला, मेरा ख्याल है वो लोग आ गए हैं, मैं देखता हूँ। समीना बोली, जरा मोहतात रहना, पुलिस भी हो सकती है। शारिक बोला, पुलिस वाले इस तरह शरीफाना अंदाज में कॉल बेल नहीं बजाया करते। बहरहाल तुम पोजीशन लेकर बैठ जाओ। शारिक कहते हुए बरामदे से उतर गया। उसने अपना पिस्तौल हाथ में ले लिया था। समीना क्लैशनकोफ संभाल कर सुतून की आड़ में बैठ गई। उसने एक घुटना जमीन पर टिका दिया था और राइफल आगे को निकाल ली थी। उसका अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई कमांडो पोजीशन लेकर बैठा हो। उसकी नजरें शारिक पर मरकूज थीं, जो दबे कदमों मोहतात अंदाज में गेट की तरफ आ रहा था। शारिक गेट के बिल्कुल सामने नहीं गया, वो गेट के सुतून की आड़ में हो गया। पहले उसने गेट की झर्री में से बाहर झांका, लेकिन सामने कोई नहीं था। शारिक ने पूछा, कौन है? इस वक्त बाहर कौन है? उसका लहजा सरगोशियाना था। बाहर से भी सरगोशियाना लहजे में आवाज आई, शारिक भाऊ, दरवाजा खोलो, मैं हूँ जफरी। शारिक ने बड़ी आहिस्तगी से छोटा दरवाजा खोल दिया। पहले जफरी अंदर दाखिल हुआ और उसके बाद पप्पू। शारिक दरवाजे के करीब खड़ा रहा। जफरी बोला, दरवाजा बंद कर दो शारिक भाऊ, वो नहीं आएगा। शारिक बोला, क्या मतलब? कदीर कहाँ है? जफरी बोला, कदीर हमारा साथ छोड़ गया शारिक भाऊ, अंदर चलो, तफसील से बताता हूँ। शारिक ने आहिस्तगी से दरवाजा बंद कर दिया और उनके साथ बरामदे की तरफ आ गया। समीना अब भी उसी पोजीशन में बैठी हुई थी। उन्हें देखकर वो उठ गई। वो लोग अंदर आ गए। समीना ने दरवाजा बंद करके बत्ती जला दी। जब वो लाउंज में दाखिल हुए तो शाहपरी सोफे पर पड़ी सो रही थी। उनकी आवाजें सुनकर वो भी उठ गई। शारिक वगैरह कालीन पर बैठ गए। शारिक ने सवालिया निगाहों से जफरी की तरफ देखा। बोला, हाँ, अब बताओ क्या हुआ? जफरी ने कहा, कदीर के डेरे से तो हम 5 लाशें गिराकर भाग निकले। फिर वो तफसील से उसे तमाम वाकयात बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था, हम उन्हीं की कार में फरार हुए थे। गुलबर्ग में दाखिल होते ही पुलिस हमारे पीछे लग गई। यहाँ शायद पुलिस पहले ही से अलर्ट थी। पुलिस हमें रोकने के लिए इक्का दुक्का फायर करती रही। हमें जल्द ही अंदाजा हो गया कि हमें चारों तरफ से घेरे में लेने की कोशिश की जा रही है। बिलाखिर हमने एक जगह गाड़ी छोड़ दी और पुलिस से मुकाबला शुरू कर दिया। उस मुकाबले में कदीर पुलिस के हाथों मारा गया। हम बड़ी मुश्किल से पुलिस का घेरा तोड़कर निकल सके। इस तरफ आने की बजाय हम दूसरी तरफ निकल गए और एक तवील चक्कर काट कर फिर इस तरफ आए। पुलिस हमें लिबर्टी मार्केट के दूसरी तरफ तलाश कर रही होगी। शारिक अफसरदा लहजे में बोला, कदीर के मारे जाने का बहुत दुख हुआ। वो वफादार आदमी था, उसके दिल में लालच नहीं था। वो अगर चाहता तो कई रोज पहले जब मैं उसके रिक्शे में बैठा था, मुझे पुलिस के हवाले करके इनाम हासिल कर सकता था, लेकिन उसने मुझसे दोस्ती करके अपनी जान खतरे में डालने को तरजीह दी और बिलाखिर अपनी जान दे दी। वो देर तक बैठे कदीर के बारे में बातें करते रहे। फिर समीना उठकर कमरे में चली गई और शारिक जफरी और पप्पू के साथ बैठा बातें करता रहा। एक रात में कत्ल की 8-9 वारदातें। पूरे शहर में खौफ और सनसनी की एक नई लहर दौड़ गई थी। ये कत्ल गारत 2 गिरोहों के तसादुम का नतीजा था, शारिक और हाजी के गिरोह। गुज़श्ता रात एक आदमी शारिक का, 7 आदमी हाजी के और 2 पुलिस वाले मारे गए। लोग एक बार फिर सरापा एहतजाज बनकर सड़कों पर निकल आए। वो शारिक और हाजी की गिरफ्तारी के अलावा पुलिस के आला अफसरों की बरतरफी का मुतालबा भी कर रहे थे।
जो सूरत-ए-हाल पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम रहे। अखबारात भी पुलिस ही को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे थे। अखबारात में शाया होने वाली ये खबर भी खासी सनसनीखेज साबित हुई थी कि गुज़श्ता रात पुलिस के एक नौजवान ASI और 2 कांस्टेबलों ने एक रिक्शे में सवार शारिक और समीना को रोका था, लेकिन वो गिरफ्तार न हो सके। उसके बरक्स शारिक और समीना उन पुलिस वालों का असलहा छीन कर फरार हो गए। ASI और उन दोनों कांस्टेबलों को मुअत्तल कर दिया गया। वैसे भी पुलिस वालों की शामत आ गई थी। नीचे से ऊपर तक लातादाद अफसरों के तबादले किए जा रहे थे। जिन इलाकों में कत्लो गारत हुई थी उन इलाकों के SHOs को मुअत्तल कर दिया गया। शहर के रिक्शा ड्राइवरों की भी शामत आ गई थी। ये खबर पूरे शहर में फैल गई थी कि शारिक रिक्शा ड्राइवर के भेस में आजादी से शहर में घूम फिर रहा था और चेकिंग के दौरान कई मर्तबा पुलिस से उसका सामना भी हुआ था, लेकिन पुलिस वाले उसे शनाख्त न कर सके। पुलिस के पास शारिक की सिर्फ एक तस्वीर थी जो जेल रिकॉर्ड से हासिल की गई थी। उस तस्वीर की सैकड़ों कॉपियां बनवा कर पुलिस वालों में तकसीम कर दी गई थी। अब हर दूसरे पुलिस वाले के हाथ में शारिक की तस्वीर थी, लेकिन यह तस्वीर कई साल पुरानी थी और उससे शारिक को शनाख्त कर लेना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर था। अब पुलिस की तमाम तर तवज्जो रिक्शा ड्राइवरों पर मरकूज थी और रिक्शे को रोका जा रहा था। ड्राइवर खा जवान हो या बूढ़ा, उससे तरह तरह के सवाल किए जाते। उसका लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता और तस्वीर से उसकी शनाख्त की कोशिश की जाती। कई रिक्शे वालों की पिटाई भी हुई। शहर के तमाम रिक्शा ड्राइवर पुलिस के इस रवैये पर सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने हड़ताल कर दी। पूरे शहर के रिक्शे बंद हो गए, जिससे लोगों को मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ा। अजीब सूरत हाल थी। हाजी की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। कई वज़रा और असेंबलियों के मेंबर उसकी मुट्ठी में थे। पुलिस उस पर हाथ डालते हुए घबरा रही थी। IG ने उसकी गिरफ्तारी के लिए बहुत ऊपर की सतह पर कोशिश की थी, लेकिन उसे हाजी को गिरफ्तार करने की इजाजत नहीं मिली, जिस पर IG ने एहतजाज करते हुए अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया। नए IG ने कुर्सी संभालते ही ये हुक्म जारी कर दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर शारिक और समीना को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन शारिक और समीना तो छल्लावा बन गए थे। समीना की तो पुलिस के पास कोई शनाख्त ही नहीं थी। पुलिस वाले हर औरत को मुश्तबा नजरों से देख रहे थे। अखबारात में दोबारा उनकी गिरफ्तारी के लिए इश्तिहारात शाया किए गए। इनाम की रकम 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई। समीना और शारिक ने भी वो इश्तिहार देखा। उन दोनों के लिए हैरत की बात यह थी कि इस मर्तबा शारिक के साथ समीना की तस्वीर भी छपी थी। इस मर्तबा पुलिस को कुछ अक्ल आ गई थी। समीना की ये तस्वीर उसके घर वालों से हासिल की गई थी, लेकिन ये तस्वीर समीना के कॉलेज के जमाने की थी। जब यह तस्वीर खींची गई थी उस वक्त समीना की उम्र 20-21 साल रही होगी, जबकि उस वक्त वो 27-28 साल की थी। उसमें बड़ा फर्क आ गया था। जो लोग शुरू से समीना को देखते आ रहे थे वो तो उस तस्वीर की मदद से उसे पहचान सकते थे, लेकिन पहली मर्तबा तस्वीर देखने वाला शख्स करीब खड़ी हुई समीना को शनाख्त नहीं कर सकता था। इस तस्वीर की इशाअत के बाद समीना बहरहाल मोहतात हो गई थी। पहले तो वो बुर्का पहनकर मार्केट चली जाया करती थी, लेकिन अब उसने बाहर निकलना ही छोड़ दिया, क्योंकि दुकानों पर सौदा वगैरह लेते हुए उसे चेहरे से निकाब उठाना पड़ता और उसे अंदेशा था कि कहीं उसे शनाख्त न कर लिया जाए। शारिक ने भी अपनी तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। वैसे भी 2-3 दिन से वक्फे से बारिश हो रही थी। वो घर से बाहर ही नहीं निकला था। इन 2-3 दिनों के दौरान तहखाने में रखा हुआ सोना थैलियों में भर भर कर रजिया वाली कोठी में पहुंचा दिया गया। ये काम समीना और शापरी ने किया था। बुरके और चादर की वजह से उन्हें सोना मुंतकिल करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। पहले समीना ने मशवरा दिया था कि नौलखे को भी उसी तहखाने वाली कोठी में ले आया जाए, लेकिन शारिक के ख्याल में अब ये कोठी मशकूक हो गई थी। अगर पुलिस ने किसी तरह इस कोठी के बारे में पता चला लिया तो वो खुद तो अपनी जान बचाकर भाग सकते थे, लेकिन नौलखे को बीमारी की हालत में ले जाना मुमकिन न होता। इसलिए नौलखे को रजिया वाली कोठी में ही रहने दिया गया था। अलबत्ता शापरी को भी वहीं भेज दिया गया। समीना शापरी वगैरह के साथ रह रही थी। उन्होंने यहाँ कई दिनों का राशन भी जमा कर लिया था ताकि उन्हें बार बार घर से बाहर न जाना पड़े। तारा भी तहखाने में मौजूद था। उसकी देखभाल जफरी और पप्पू ने अपने जिम्मे ले ली। उसे चाय और खाना बाकायदगी से पहुंचाया जाता और दिन में 1-2 मरतबा तहखाने से निकाल कर बाथरूम भी ले जाया जाता। खौफ और दहशत से तारा चंद रोज के अंदर ही सूख कर कांटा हो गया। शारिक ने उससे हाजी के बहुत से राज मालूम कर लिए और अब वो उनके लिए बेकार था। वो उसे मारना भी नहीं चाहता था, बिला वजह किसी के खून से हाथ नहीं रंगना चाहता था, लेकिन उसने फैसला कर लिया कि उसे जिंदा छोड़ दिया जाएगा। शारिक को यह इत्मीनान था कि इस तरफ आते हुए तारे को रास्तों का पता नहीं चल सका था। वो ज्यादातर बेहोश रहा था और होश में आने के बाद भी समीना और शापरी ने उसे इस तरह दबोच रखा था कि वो रास्ता न देख सके। वैसे भी वो कोठी में आने के काफी देर बाद अपने हवास में आ सका था। 1 हफ्ता गुजर गया। पुलिस की सरगर्मियां भी मांद पड़ गईं। 1 हफ्ता पहले जिस जोशो खरोश से पुलिस ने शारिक और समीना की तलाश शुरू की थी, अब वो बात नहीं रही थी। वैसे शारिक किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं था। पुलिस की सरगर्मियां मांद पड़ जाने का मतलब ये नहीं था कि पुलिस बिल्कुल ही खामोश हो गई थी।
वो जानता تھا کہ پولیس اب بھی مشتبہ لوگوں پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔